ہماری روایت ہے، ہم ہر اچھے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے سلمان علی صاحب کو گزارش کرنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا۔ اسی کے ذکر سے معراج زندگی ہوگی، اسی کے ذکر سے معراج زندگی ہوگی، اسی کی بات سے تکمیل آرزو کرنا، انہی کے نام مختص تمام تعریفیں، اسی کے نام سے آغاز گفتگو کرنا۔ تو سلمان علی صاحب اگر آپ سٹیج پہ آ کے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ سلمان علی صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم دونوں ممالک کے پاکستان اور امریکہ کے قومی ترانے بجائیں گے۔ اعلیٰ صاحب 2 منٹ میں اسمبلی میں پہنچنے والے ہیں، تو ہم 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ان کا، اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تمام کو میں درخواست ہوگی آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں اس وقت۔ ہم تلاوت وغیرہ تو کر چکے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس گلگت بلتستان کی جو نمائندہ تنظیم ہے نیو یارک میں، سونی وطن گلگت بلتستان، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سونی وطن گلگت بلتستان ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے نیو یارک میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نیو یارک میں جتنے بھی گلگت بلتستان اور پاکستان کے لوگ رہتے ہیں ان کے بیچ میں رابطے کا کام کیا جائے، لوگوں کو ایک موقع دیا جائے ساتھ مل بیٹھنے کا، اور گلگت بلتستان کی جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے، ثقافت کے حوالے سے، تو اس کو اجاگر کیا جائے۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ پلیز تھوڑی سی توجہ اس طرف پہ دے دیں، ذرا سی خاموشی، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اپنے معزز مہمان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حاجی گلبر خان صاحب کو اور اس کی ٹیم، راجہ ناصر صاحب، غلام محمد صاحب، عثمان صاحب اور کیپٹن مشتاق صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ سونی وطن گلگت بلتستان امریکہ کی نمائندہ تنظیم ہے جو گلگت بلتستان کے لیے اور پاکستان کا صاف امیج دنیا میں اجاگر کرتی ہے۔ میں اپنے کونسل جنرل صاحب عامر احمد اتوزئی صاحب کا بھی بہت بہت مشکور ہوں۔ وہ ہر وقت ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو چار چند لگاتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، اور دیگر تمام خواتین و حضرات، میں فرداً ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں گلگت بلتستان کا احاطہ صرف 2 شہروں میں کروں گا۔ پہاڑی بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب پتھر میں رہتے ہیں ہم۔ خواتین و حضرات اور جناب مہمان گرامی،
सोनी वतन का क़याम 2004 में अमल में लाया गया। इसका मेन मकसद गिलगित बाल्टिस्तान के टूरिज्म, गिलगित बाल्टिस्तान का कल्चर और गिलगित बाल्टिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हौसला अफजाई करना हमारा अहम मोटो है। गिलगित बाल्टिस्तान एक्चुअली हमारा ये इवेंट इंडिपेंडेंस ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान या गिलगित बाल्टिस्तान सेलिब्रेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। आप यूं कहें, हम इसको यौम इत्तेहाद पाकिस्तान भी कहते हैं। जरा स्टेज पे तशरीफ लाएं, हम आपको अपने रिवायती चौका पहनाएंगे। मैं सबसे पहले जनाब नसीम गिलगिती साहब और उनके पूरे टीम को सलाम पेश करता हूँ और साथ अपने पाकिस्तान के तमाम अहबाब ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी हुआ कि मेरा ये अमेरिका के दौरे पे हमारे 2 दिन ह्यूस्टन शहर में हुआ। वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के सारे बिजनेस के जिम्मेदार, मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे शिरकत किया और पाकिस्तान और बिलखुसूस गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की के लिए और गिलगित बाल्टिस्तान के वहाँ के टूरिज़म के हवाले से हमारे साथ न सिर्फ शेयर किया बल्कि उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि हम सब जो है खुद वहाँ पे गिलगित का दौरा भी करेंगे और वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और आज तीसरा दिन है यहाँ पे। यहाँ पर भी हमें हमारे भाइयों ने बहुत बड़ा इज्जत दिया। कल का इवेंट में भी वहाँ पे टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान का ये दूसरा साल है कि इन्होंने इनाम लिया पूरा जो है मुल्कों में। आज इतना बड़ा जो प्रोग्राम यहाँ पे किया, ये हमें खुशी है। यही बहाने पे हम आप सब के साथ मुलाकात हुआ और पाकिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान का नाम अब नसीम गिलगिती साहब ने ये टोपी और गाड़ी में भी गिलगित का नंबर यहाँ पे भी है, तो ये हमारे लिए है कि आप लोगों ने यहाँ इतना बड़ा इवेंट किया हो। हमारे गिलगित बाल्टिस्तान की एक मशहूरी की एक वजह ये भी है कि हम नाचना बहुत पसंद करते हैं, हमारी सकाफत का हिस्सा है। खुसूसन मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए हमारे वहाँ पे रक्स होता है। तो मेरी नसीम गिलगिती साहब और उनकी टीम से गुजारिश होगी कि वो आ जाएं और हम गिलगित बाल्टिस्तान के हैं जो मशहूर मारूफ गाना है उस पर रक्स पेश करेंगे। नसीम गिलगिती साहब और उसके साथ सोनी वतन गिलगित बाल्टिस्तान के दूसरे जो अहबाब हैं यहाँ पे प्लीज़ शामिल हो जाएं।
some very close friends to Soni Watan Gilgit-Baltistan, especially from Greek community. Mr. Tim, where are you, sir? You are always hiding from us. You are here. Please, can you come to the stage? Mr. Tim. He is a big investor for Gilgit-Baltistan. I need you, friend. Come here, please. Nassim, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm glad I'm here with you again today. It's been about a year, and here we are. It's a different world, and a different spirit is around. It's a spirit where power and might is right. Power and might is right, but that is not necessarily right. So we have to be careful, and that's not the spirit that we are or we represent. The spirit will represent the spirit of Alexander, where it's unity in accordance to justice and the basis of excellence for all people in the world. In this way, we're united because there's goodness in each one of us, and it's on that basis that we should be united. It is the spirit, again, I say, of Alexander, who wanted to unite the whole world in accordance with that spirit. There's beauty, there's justice, and there's goodness for all of us. Gilgit-Baltistan के बारे में हम आपको, we keep talking about Gilgit-Baltistan, like how beautiful it is, but we don't talk a lot about, how rich this civilizational value of Gilgit-Baltistan is. So we have a documentary that we are going to show to you. एक documentary हम दिखाएंगे, एक दस्तावेजी फिल्म है जो हम दिखाएंगे. But I just wanted to mention that जहाँ से वज़ीर आला साहब का ताल्लुक है ज़िला दियामर, जो गिलगित-बल्तिस्तान का एक बड़ा ज़िला है, उसमें जो कदीम नवादरात मिले हैं, प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब ने उस पर बड़ी मुफस्सिल किताब लिखी है. उसमें उनका कहना है कि जो नवादरात उनको मिले हैं वो 6000 साल पुराने हैं, कम से कम 6000 साल पुराने हैं. तो मतलब ये जो खित्ता गिलगित-बल्तिस्तान है, ये छोटा सा इलाका है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसार मिलते हैं. यहाँ पे आपको जो टैक्सिला की सिविलाइजेशन थी उसके आसार मिलते हैं. सिल्क रूट जो कदीम शाहरात थी उसके आसार मिलते हैं. और शायद ये पाकिस्तान का वाहिद खित्ता है जहाँ पे 3 बड़ी तहजीबें आपस में मिलती हैं. अगर मैं कहूँ कि इंडो आर्यन, इंडो ईरानियन और साइनो तिब्बतन, ये तीनों सिविलाइजेशन यहाँ पे मिलती हैं और उसके आसार आपको इनके सकाफत में, ज़बानों में, हर चीज़ में मिलती है. तो मैं आपके बीच में ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा, तो I'll request you to please play the documentary. The crown jewel among Pakistan's many treasures. A place of unspeakable natural beauty. A place even the most adventurous could not begin to quench their thirst for discovery. A place rich with wildlife and biodiversity. Rich with ancient traditions and history. Where a culture of healthy food and hospitality are ingrained deep into the local way of life. As this region becomes more accessible than ever before, locals are exploring how ecotourism initiatives can help them protect the environment and culture of this region, while also embracing the economic benefits that come from a robust tourism industry. करने की कोशिश कर रहे हैं. टूरिज्म डिपार्टमेंट के अगर हम विजन की भी बात कर ले तो ये हमारा विजन है कि हम यहाँ के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए बगैर, यहाँ के कल्चर को डिस्टर्ब किए बगैर हम यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सके. प्लास्टिक से भी इन्वायरमेंट में गंदगी और बीमारियां आती हैं. एक कचरा हमारे रोड पे नहीं होता था, अभी जगह जगह यहाँ पे रोड पे गंदगी, दुकानों के सामने गंदगी, होटल के सामने गंदगी फैल गई है. We might be bringing more damage to the area than doing good. It's bringing good money, it's easy money, but what it's doing to the environment, we are going to pay for that. We're going to run out of natural places. टूरिज्म का होना काफ़ी नहीं है. अगर यही टूरिज्म, मैस टूरिज्म इसी तरह चलता रहे तो फिर ये हमारा जो इकोसिस्टम है इससे तबाह होना है, कल्चर तो तबाह होना है, ट्रेडिशंस तो तबाह होना है.
اس کو हमने इको टूरिज्म की तरफ हमने शिफ्ट करना है। इसके बाद में शर्मन शान एक हमारे सिंगर हैं और इनकी खूबी ये है कि ये शिना ज़ुबान सीख रहे हैं। शिना इनकी मातृ ज़ुबान नहीं है, इनका ताल्लुक मेनलैंड पाकिस्तान से है, लेकिन ये शिना ज़ुबान सीख रहे हैं और वो शिना में गाना गाएंगे, पैट्रिक और शर्मन शान। जब उस रात दिल को याद आते, तो जब उस रात दिल को याद आते, बुरी याद आते, बुरी याद आते, बुरी याद आते, बुरी याद आते। जब उस रात दिल को याद आते, जब उस रात दिल को याद आते। मैं उनमें एक शख्सियत मौजूद है जिनको मैं स्टेज पे दावत देना चाहता हूँ। उनका नाम है वसीम समद साहब और वो रूपानी फाउंडेशन जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मुंसलिक है। तो वसीम समद साहब, अगर आप स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इजहार करेंगे तो वसीम समद साहब। Honorable CM Sir, Minister Tourism, Minister Planning, Usman Sir, Yasir Sir, Assalamu Alaikum. Rupani Development Initiatives, being part of this journey is we'll try. Thank you, sir. Will not take more than 2 minutes of you, but I'm here to present the platform of GB Invest under Rupani Development Initiatives. हम ह्यूस्टन में एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट रोड शो करके आए हैं and we feel that as Rupani Development Initiatives we have invested a lot in Gilgit-Baltistan and we want to invest more with the support of Pakistani diaspora. मैं हमारे पाकिस्तान के कौंसल जनरल यहाँ पे मौजूद हैं हमारे बीच में आमिर अहमद आतुज़ई साहब। हम आपसे मुल्तमस है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। और हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब, इंतहाई काबिल इज़्ज़त मिनिस्टर साहिबान गिलगित बल्तिस्तान से गुलाम मोहम्मद साहब, राजा नासिर साहब, बाकी हमारे ब्यूरोक्रेसी के जितने साथी आए हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी, बाकी न्यूयॉर्क की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी and all other, sorry I'm in Urdu but I'll speak a bit in English as well so that the foreigners who are sitting over here they could also pick me. आप सबको अस्सलामु अलैकुम and a very good evening to you all. It's a pleasure being here today. Why? Because I can see faces where there is chamak brightness, smile, and they are sitting in a spirit of love, compassion, understanding, rawadari, and akhuwat. And as the Council General for Pakistan, there is nothing more elating for me. इससे बढ़ के कोई बात हो नहीं सकती मेरे लिए खुशी थी to see my community sitting like this together with a spirit of sharing, caring, supporting each other, always being there to make any event historical. आखिरी बात मैं ये करूँगा कि आप खाना भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, टाइम भी बड़ा थोड़ी देर हो गई है कि जब गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाती है, whenever there is, sorry I'm again, when I look at certain people who would not be able to understand Urdu, so whenever there is talk between talk about the natural beauty of Gilgit Baltistan, so without a doubt,
I mean, being a career diplomat, I've been to more than 50 countries, you know, from Europe to Africa and Middle East and East Asia. And I mean, I've been on lands and inlands and mountains and seas. But it's not just I'm a Pakistani, I'm saying this. Believe you me, by Allah, I've never seen a place like Gilgit-Baltistan. And in Urdu we say Jannat Nazir, so I mean it is even out of that context. It is, I mean, as they say in English, it is awesome. It is beyond, I mean, comprehension. The arrestingly charming beauty of Gilgit-Baltistan is immense. But it doesn't end at this. Another important thing that I would like all of you to notice, that it's not just Gilgit-Baltistan in its natural beauty which is an asset to us. It's the people. The people. We all are Pakistani. We all are Pakistanis. But let me acknowledge this here, that in their attitudes and in the way they conduct themselves, their hospitality, the way they are courteous, the way they are faithful, and their integrity is beyond any doubt unmatched. So that makes them, all these things make them the most beautiful people of the world. So let us give them a big hand. अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और आपके वक्त का ख्याल रखते हुए हमारे पास कुछ अवार्ड्स हैं, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं, ऐसे अफराद हैं, तलबा और तालिबात हैं जो नुमाया कारकर्दगी का इजहार करते हैं। तो उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए हम उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे। तो मेरी गुलाम मोहम्मद साहब जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश होगी कि आप तशरीफ लाएँ स्टेज पे और चंद अफराद में अवार्ड्स तकसीम करें। गुलाम मोहम्मद साहब। अकबर खान साहब से गुजारिश है अगर आप भी स्टेज पे आ जाते हैं अवार्ड्स टीम को। डॉक्टर वाहिदा अली से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पे। डॉक्टर आमिना का ताल्लुक अस्तोर से है। ये माशाल्लाह इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उन्होंने रेजिडेंसी कंप्लीट की है, पिछले कई सालों से मेन में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब। भाई बहुत शुक्रिया मुझे इस डाइस पे जगह देने के लिए, बताने के लिए। मेरा नाम समीना हैदर है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और शायद कुछ लोग मुझे नहीं जानते। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ बड़े मोहब्बत और प्यार से मुझे वकील अंसारी ने मदऊ किया कि आप आए, क्योंकि शायद कुछ ही लोगों को पता है कि मैं गिलगित-बल्तिस्तान में 3 साल से काम कर रही हूँ। बात छोटी सी है मगर थोड़ा सी एक दुख भरी बात स्टोरी जुड़ी है। मेरा भाई बल्तिस्तान गया था, उसने मुझे 2014 में कहा था कि तुम यहाँ पे क्या टाइम ज़ाया करती रहती हो, I'll show you heaven on earth। और 2 साल के बाद उसका मर्डर हो गया, तो वो तो चला गया मगर उसने मुझे इतनी खूबसूरत जगह बताई और मैंने वहाँ पे उसके नाम से स्कूल शुरू किया। 120 बच्चों का स्कूल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में मेरे 2 स्कूल हैं, एक 120 बच्चे हैं एक में और एक में 218 है। गवर्नर बल्तिस्तान ने मुझे सिर्फ 1 टीचर दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 5 टीचर हैं और 5th ग्रेड से अब वो 7th ग्रेड तक आ गया है। और सब लोगों ने
बल्तिस्तान गिलगित के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत बात की, मगर उन्होंने ये नहीं कहा वहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। मेरा दिल करता है मैं उन बच्चों को यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, उनसे बात कराऊं, आप उनका इनकी इंटेलिजेंस देखें, उनकी इंग्लिश हर कुछ उनकी आप देखें, और मैं उनको प्रिपेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह 2 साल के अंदर वो कैडेट कॉलेज के मेरिट पे बैठेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट पे बैठेंगे, और इंशाल्लाह मैं उनके लिए 2-2 सीट हर कैडेट कॉलेज से मैं लड़के दूँगी। और आप लोग मेरे लिए दुआ करिए, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय मोरल सपोर्ट की। जज़ाकल्लाह खैर। सैयद वसीम हसन साहब से कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पे और अपना अवार्ड हासिल करें। मुश्ताक कंबोज का ताल्लुक बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइजेशन का है। ये गिलगित बाल्टिस्तान के लिए तकरीबन हर साल तकरीबन 500 कपड़े हर महीने गिलगित बाल्टिस्तान के लिए भेजते हैं, और यहाँ भी कम्युनिटी सर्विस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इत्तेफाक से मुझे नसीम भाई ने वक़्त दिया है, तो मैं पाकिस्तान के अंदर तो एज चीफ कोऑर्डिनेटर अमन कमेटी यानी कि इंटरफेथ के मामलात में होता हूँ, मगर मैं इसके साथ साथ जो एक मेरा अदारा है मैं उसमें भी काम करता हूँ। जैसे इससे पहले मेरी बहन आई है और उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ बल्तिस्तान के अंदर ये इतना खूबसूरत काम किया है कि जो काबिल तहसीन भी है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। हमें भी चाहिए कि हम यहाँ से बैठ के बल्तिस्तान के अंदर ऐसी अपनी बहनों की, बेटियों की, अपने भाइयों की इस तरह से मदद करें कि वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं जो तालीम से दूर हैं या जो उनकी एक फिजिकली आसाइशें जो हैं उनसे वो दूर हैं या उनकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनसे वो दूर हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम सब पाकिस्तानियों को बल्तिस्तान के लिए खसूसी एक पैकेज बना के देना चाहिए बल्तिस्तान को। परवेज सदीकी साहब अपना के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनके माशाल्लाह डबलिन में कई सेंटर, कम्युनिटी सेंटर चलते हैं और बहुत कम्युनिटी की मदद है। मैं चाहूँगा परवेज साहब कुछ आप वसीम गिलगिती साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे यहाँ पे बुला के इतना अवार्ड दिया है। और मेरी हमेशा कोशिश तो यही होती है कि आपके साथ ताबन करूँ और कम्युनिटी के लिए काम कर सकूँ। हम कोशिश करते हैं अपनी, और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि अपनी कम्युनिटी को जितना भी हम आगे ले जा सकें वो करें। मेरा ज़्यादातर एम्फेसिस जो है अपने बच्चों के ऊपर है जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और दूसरे एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। कोशिश हमारी ये है कि कम्युनिटी भी हमें हेल्प करे और हम उनको तालीम की तरफ ले जा सकें ताकि वो आगे जाके अपना हाई स्कूल करने के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट ना हो और आगे जाके फिर वो मज़ीद जो है ना अपनी करियर बिल्डअप कर सकें। For those who don't understand the words that I'm saying, it is my great pleasure and honor to be here today to accept this acceptance of the encouragement of the plaque that Naseem Gilgiti is giving me. And this particular organization, which is run by Naseem Gilgiti, is a super organization and it does tremendous amount of work right here and गुजारिश करूँगा ताहिर खान साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। जियो ट्रिपल के बानी हैं। आसिफ बेग साहब
ख़वातीन व हज़रात, माशाअल्लाह बड़े बड़े प्यारे खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं। आज हमारा जो मकसद है यहाँ पे इकट्ठे होने का, वो है टूरिज्म को जो है प्रमोट करना। तो हम चाहते हैं कि हम सारे जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं वो दुनिया के हर मुल्क में जाके तो पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पे टाइम देते हैं, अपनी वेकेशन करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट हर साल ही करता हूँ कि जब भी आपने कहीं वेकेशन पे जाना हो तो गिलगित बल्तिस्तान जाएं, वहां पे आप जाएं, वहां की खूबसूरती एंजॉय करें, वहां पे आपको परियां उतरती नजर आएंगी इंशाल्लाह। आप वहां पे एंजॉय करेंगे, वहां पे आपको जो हुस्न है वो आपको स्विट्जरलैंड भूल जाएगा। अपने मुल्क के अपने लोगों की खिदमत करें। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे सीएम साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हमारे मिनिस्टर जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये आप लोगों के पास इसलिए आते हैं ताकि आपको मोटिवेशन दी जाए कि अपने मुल्क की तरफ जाएं, वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करें, वहां पे डॉलर खर्च करें। आपके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए कि अब इस्लामाबाद से चित्राल स्कर्दू पर फ्लाइट जाती है, आपको ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप वादा करें कि जब भी वेकेशन पे जाएंगे, समर में बच्चों को लेके इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जाएं। के ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव जनाब मोहतरमा आतिया शहनाज से गुजारिश करूंगा कि वो सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के लिए मैच की तरफ से जो सर्टिफिकेट आया वो पेश करें। Thank you so much, Naseem Gilgiti Sahab. It's an honor and pleasure again every year to be part of mashallah this wonderful and cultural event. Thank you so much for all your effort to promote the culture and skills, especially you represent the all cream from the Baltistan, the students, the doctors you are promoting. Thank you so much for your effort for promoting your culture. He says, as it hosts its Gilgit Baltistan cultural celebration, my administration is committed to ensuring that people of all backgrounds and beliefs feel respected and welcome in New York City. This organization works to promote the development of Pakistani's beautiful and mountainous Gilgit Baltistan region and advocate on behalf of its diaspora. Today's event offers New Yorkers an excellent opportunity to deepen their understanding of and stand in solidarity with our South Asian sisters and brothers. Together, we will further strengthen the 5 boroughs as we forge a brighter, more inclusive and harmonious future for our global city. From Mayor Eric Adam. So, thank you so much. सदर जनाब रोहेल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं अपनी टीम के साथ। जब पिछली दफ़ा आप गिलगित बल्तिस्तान टूर पे आए थे तो मेहदी शाह साहब ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल अवार्ड भेजा है गवर्नर बल्तिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। काइंडली प्लीज़ आप अपनी टीम के साथ स्टेज पे आएँ और अपना अवार्ड रिसीव करें। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक हकीर सा तोहफा। गिव अ बिग हैंड प्लीज। यार नसीब डॉक्टर रोहेल खालिद है, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। लास्ट ईयर हम यहाँ पे नसीम साहब की दावत पे आए थे, बल्कि हर साल ही आते हैं। तो 2020 से हमने कमिटमेंट की थी कि हम
NYPD को ऑफिशियली पाकिस्तान लेके जाएंगे, स्पेशली गिलगित में। तो मैं नंबर करेक्ट कर दूं, 24 जो डेलीगेशन था वो गया था। तो वो पिक्चर्स मैंने दी हैं, वो जरा लेटर ऑन आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 6 दिन गुजारे थे गिलगित में, और 7 दिन गिलगित में थे और 4 दिन स्कर्दू और दूसरे जगह पे थे। तो इस 7 दिन में हमने पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान है, स्कर्दू है, हमने 7% भी नहीं एक्सप्लोर किया, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें वहाँ पे थी कि। और हमारे साथ जो फॉरेनर थे, जो अमेरिकन पुलिस ऑफिसर थे, वो भी सरप्राइज हो गए कि ये पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पिक्चर दिखाई जाती है वो आपको वही दिखाई जाती है जो 9/11 के बाद की है, कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान एक है। लेकिन जो असली पाकिस्तान की ब्यूटी है वो वहां पे जाके पता चलता है, और हम लोग भी सरप्राइज हुए थे। तो हमारे साथ हमारे कैप्टन वहीद अख्तर साहब भी थे, और भी एग्जीक्यूटिव गए हुए थे। लेकिन इसकी जो मेन वजह थी, वहाँ पे जब जो मिनिस्टर हैं वहाँ के, राजा साहब और CM साहब थे, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, हमें स्पेशल एयरपोर्ट पर लेने आए थे। तो मेरे ख्याल में जो टूरिज्म के मिनिस्टर, इनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। एक चीज हमने नोटिस की कि हम चीजें तो एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन वहां पे जो कमी हमने देखी कि वहां पे सबसे पहले एक चीज नजर आई कि वहां पे सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था। गिलगित में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल, स्कर्दू में एक ही हॉस्पिटल है, और वहां पे लोगों के पास बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी नहीं थे। राजा साहब ने ये बात हमें पॉल्स की डेलीगेशन को बताई, तो इनकी मदद से हमने रातों रात जितने भी वहां पे हम बेंचेस लगा सकते थे वो हमने वहां पे लगा दिए, ताकि लोग वेट करके, अगर वेट करना है तो वहां पे बेंचों पे बैठ के वेट करें। तो थैंक यू राजा साहब। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हमें पता चला कि बच्चियों का स्कूल है, और बच्चियों को स्कूल जाने का वहां पे जितना गिलगित में मैंने शौक देखा है, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं देखा, लेकिन वो जमीन पे बैठती है। तो उसी दिन हमने आई थिंक ओवरनाइट हमने सारे स्कूल के लिए कुर्सियों और टेबलों का ऑर्डर किया वहां पे। तो आखिरी दिन जाने से पहले राजा साहब से मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि वहां पे, अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, वहां पे कैडेट कॉलेज है फौज का, आर्मी का, वहां पे तो वहां पे बच्चे वहां पे जाते हैं। और आई थिंक सिंस 2012 से वहां पे है। वहां पे पानी का पीने के लिए जो पानी है वो मैसर बिल्कुल नहीं है, तो वो प्लांट काफी एक्सपेंसिव था। तो वहां पे जितनी भी मेरी डेलीगेशन टीम थी, हमने वहां पे चिप इन किया, और उसी वक्त हमने उसका काम शुरू कराया। और राजा साहब की वजह से विद इन 12 to 18 hours we were able to, I think, start filtering the water over there. और उसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में लोग उनमें अगर और चिप इन करें तो वो आगे जो गांव वगैरह वहां पे भी साफ पीने का पानी जा सकता है। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, राजा साहब के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहीं पे ये हमारे साथ थे, हमें गाइड कर रहे थे। और साथ साथ जब हम स्कर्दू से गिलगित की तरफ जाने लगे तो वहां पे लैंड स्लाइडिंग होगी, तो बड़ा एक एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मूवीज में देखते हैं कि हम स्टक हो गए। तो 24 पुलिस ऑफिसर्स और उनके दोस्त हम जा रहे हैं वहां पे लाइव, बिल्कुल कोई आदमी ना उधर से इधर आ सकता था ना इधर से उधर जा सकता था। और जो हमने क्रॉस करनी थी सड़क, तो तकरीबन 6 से 8 इंच था वो रास्ता। तो जिस तरीके से हमने किया, राजा साहब ने भी हमारे साथ किया, तो वो एक बहुत एडवेंचर हमारे साथ हो गया। तो लेकिन आई थिंक वी विल रिमेंबर दैट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू राजा साहब, प्लीज से फ्यू वर्ड्स, एंड इफ आई मिस एनीथिंग यू कैन ऐड। थैंक यू सो मच सर। आपकी विजिट, आप लोग ने गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे बड़ी अच्छी यादें आप छोड़ के आए, और हमें उम्मीद है कि आप जिस तरह से आपकी कंट्रीब्यूशन रही है हॉस्पिटल्स के अंदर और स्कूल के अंदर और कैडेट कॉलेज के अंदर, तो क्योंकि आप कमिट कर रहे थे कि हम कोई पॉजिटिव और वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान में सोशल एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वहाँ के लोगों की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। और आपने मुरामिस भी किया है कि मज़ीद गिलगित बल्तिस्तान की जिस तरह के इशूज़ पे आपकी जितने भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, और वहाँ पे जिस तरह जो खिदमत हमसे हो सका हमने पूरी की, और आप लोग तशरीफ़ लाएँ, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग विज़िट करें और हम साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए और इस वतन अजीज़ की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत उन्होंने चतराल के लिए और वहाँ की कम्युनिटी के लिए, यहाँ भी गिलगित बाल्टिस्तान की कम्युनिटी के लिए
بہت ساری خدمات انجام دی ہیں. پلس یہ فرسٹ خاتون کمرشل پائلٹ ہے گلگت بلتستان چترال کی فرسٹ کمرشل پائلٹ ہے. لکشن دیوی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان سب کو بہت بہت تھینک یو کہ آپ لوگوں نے اس ہال کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے آپ کی پریزنس نے. اٹس ریئلی ان آنر اینڈ پریویلیج ٹو ہیو یو ہیئر. اور یہاں پہ میں راجہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ دوبارہ اس میں تشریف لے آئے. اور اس کے بعد یہاں پہ چیف منسٹر صاحب میرے خیال میں تشریف فرما ہے. اور منسٹر ٹورزم صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. اور غلام محمد صاحب ان کا تو میں ظاہر بات ذکر کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاکستان کمیونٹی کی ایک بیک بون جس نے ہم سب کو جب بھی ہماری کوئی ایونٹ ہوتی ہے اس کو 4 چاند لگا لیتا ہے. ہمارے کونسل جنرل صاحب ہم لوگ ڈاؤن ٹو ارتھ اور اتنا آنسٹ اتنا کائنڈ کہ وہ کسی کو بھی یہ فیل ہونے نہیں دیتا. آئی تھنک ہی از این امیزنگ پرسن. اور آئی فیل ان آنر اینڈ پریویلیج دیٹ ہی از فرام مائی ایریا خیبر پختونخوا. اور تھینک یو ویری مچ فار یور کانسٹنٹ سپورٹ. یہاں پہ ہمارے فرینڈس ہیں تیموریان کورس ہمارے ساتھ ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کا بھی تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر. اٹس ریئلی ان آنر ٹو ہیو یو ہیئر. اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت تھینک یو. لیڈیز پلیز آپ کی نمائندگی کریں. ایک بڑی تالیاں. تھینک یو سو مچ. آپ سب لوگوں کا شکریہ آنے کا اور نسیم گلگتی کا کہ ہر سال وہ ایونٹ ارینج کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کمیونٹی یہاں پہ ہے. تو لاسٹ ایئر جون میں چترال میں تھی. آپ یقین کریں اتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے کہ آپ ویڈیو کلپس میں تو وہ 5% بھی نہیں ہے. تو میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ. وہ ایک خوبصورت جو ہمارے ملک میں اتنی خوبصورتی ہے اس کو دیکھیں. ناٹ اونلی وہاں پہ پریاں ہیں وہاں پہ دیو بھی ہیں. تو سب ضرور بہت شکریہ آپ سب کا. Good evening, everybody. I think everybody mentioned everything about what's happened. Again, I'm going to think about 3 things because everybody talked about tourism. We have to support the tourism. Second thing, we have to support the unity within our community. We need to support Gilgit-Baltistan, but also support all the Pakistani community, different organizations, whatever we could do to be united and become one. And third thing, I mean, again, انہوں نے بولا کہ تو کھوڑی لڑ پہ تھا وہ منع نہیں تھا, but we supported it. In Queens, if you have an opportunity, 101 Avenue, 109 Street, Richmond Hill, we Khonema Street, Illama Iqbal Avenue. So inshallah, we'll continue to do the work. Also, we February 5 aa raha hai. We did the first Kashmir resolution, many things, first Congress resolution. But at the end of the day, I think we need to support an organization like Sony Gilgit-Baltistan. They're doing great work. Naseem Gilgiti, as soon as the American Pakistani Advocacy Group is around, we've supported him. So thank you for that. Again, we'll continue. All the words that I said about Gilgit-Baltistan, there's no doubt about it. But I'd rather be a little bit critical of the situation since our Chief Minister is here, our Consul General is here. I think there is no doubt for Gilgit-Baltistan, but the current government of Pakistan must spread the real love that overseas Pakistani holds that has been broken. I think until they, as our ex-Prime Minister has said, that overseas Pakistanis are the core of Pakistan, and this core is broken. We must send that love message and not go with what the legacy media has been selling, but what the real chances are. My brother and sister actually went to Gilgit-Baltistan, and I saw the personal picture, and I was truly amazed.
कहते ना मुबारक आपके जो कि बलूचिस्तान के लिए 500 गाने बाप का तोहफा मानी जाती है। 500 गाने बाप जिसमें और ये